Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Muhammad Asif. Welcome to class 9th English New Syllabus 2025. Today we will talk about unit number 6, the value of time, paragraph number 1 to 6, part 1. आसान अंदाज में किया गया उर्दू बा मुहावरा तर्जमा है जो आपको किसी भी की बुक वगैरह से नहीं मिलेगा. Features of this video lecture are reading with correct pronunciation, synonyms of the important word, Urdu meaning of difficult words, explanation with contextual meaning, translation easy to understand. Let us start our lesson. Paragraph number 1. Tasir was well known for his cheerful nature and kind-heartedness. He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw, and that was his time management. He was terribly weak in managing his time. अजीज तलबा जो वर्ड बोल्ड हैं जैसे चीरफुल नेचर है, काइंड हार्टेडनेस है, एडमायरेबल है, मैनेजमेंट है, टेरिबल है, तो इनके वर्ड्स के मीनिंग और सिनोनिम की तरफ पढ़ते हैं. चीरफुल सिनोनिम इसका होगा हैप्पीनेस, खुश मिजाजी. काइंड हार्टेडनेस कंपैशन, नरम दिली. एडमायरेबल कमेंडेबल, काबिल तारीफ़. मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बंदोबस्त करना, मुनज़्ज़म करना, इंतज़ाम करना. टेरिबली ऑफली, बुरी तरह, बहुत ज़्यादा. तासीर वाज वेल नोन फॉर हिज चीरफुल नेचर एंड काइंड हार्टेडनेस. तासीर अपनी खुश मिजाज तबीयत और नरम दिली की वजह से बहुत मशहूर था. ही वाज अडोर्ड बाय ऑल, तमाम उसकी तारीफ़ करते थे. बट डिस्पाइट दीज एडमायरेबल क्वालिटीज़, लेकिन इन खूबियों के बावजूद, ही हैड वन फ्लॉ, उसमें एक कमी थी, एक खामी थी. एंड दैट वाज हिज टाइम मैनेजमेंट, और वो थी इसकी वक़्त का इंतज़ाम करना, वक़्त का इस्तेमाल करना, वक़्त को मुनज़्ज़म करना. ही वाज टेरिबली वीक इन मैनेजिंग हिज टाइम, वो अपने वक़्त के इंतज़ाम करने में, वक़्त के इस्तेमाल करने में बहुत ख़राब था. Tafsir was well known for his cheerful nature and kind-heartedness. He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw, and that was his time management. He was terribly weak in managing his time. तासीर अपनी खुश मिजाज तबीयत और नरम दिली के लिए मशहूर था. उसको सब पसंद करते थे, लेकिन इन काबिल तारीफ़ खूबियों के बावजूद उसमें खामी थी, और वो थी उसका वक़्त का इंतज़ाम करना, यानी टाइम मैनेजमेंट. और वो अपने वक़्त की तंजीम में बहुत कमज़ोर था. पैराग्राफ नंबर 2. तासीर often found himself procrastinating. He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming, while his schoolwork and chores piled up. Despite these good attentions, he always seemed to run out of time, leading to rushed assignments and incomplete tasks. His teachers were greatly concerned about him, and his parents were also perpetually worried. But Taseer wasn't ready to change his ways at all. Procrastinating, delaying, ताखीर करना. Engrossed, absorbed, मगन होना, महव रहना. Chores, tasks, काम काज, घर के काम काज. Piled up, accumulated, ढेर लग जाना. Despite, in spite of के बावजूद. Attentions, plans, इरादे. Concerned, worried, परेशान होना. Perpetually, continuously, मुसलसल. Tafsir often found himself प्रोक्रेस्टिनेटिंग. तासीर अक्सर खुद को वक़्त की ताख़ीर का शिकार पाता. ही यूज टू स्पेंड आवर्स टुगेदर engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming. वो बहम, वीडियो गेम्स, दोस्तों के साथ गपशप और दिन में ख्वाब देखना यानी ख्याली पुलाव पकाने में बहम मसरूफ़ रहता, मगन रहता. While his school work and chores piled up, जबकि उसके स्कूल का काम और घर के कामों का ढेर लग जाता. Despite his good attentions, अपने अच्छे इरादों के बावजूद, he always seemed to run out of time, उसे हमेशा वक़्त ख़त्म होता दिखाई देता. Leading to rushed assignments and incomplete tasks, जिसका नतीजा असाइनमेंट्स में जल्दबाजी और नामुकम्मल काम की सूरत में निकलता. His teachers was greatly concerned about him. उसके असातिज़ा कराम उसके बारे में बहुत परेशान थे.
and his parents were also perpetually worried. और उसके वालिदैन भी परेशान रहते थे. But तासीर wasn't ready to change his ways at all. लेकिन तासीर किसी भी तरह अपने तौर तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं था. तासीर often found himself procrastinating. He used to spend hours together in gruesome video games, chatting with friends, and daydreaming, while his schoolwork and chores piled up. Despite his good intentions, he always seemed to run out of time, leading to rushed assignments and incomplete tasks. His teachers were greatly concerned about him, and his parents were also perpetually worried. But Taseer wasn't ready to change his ways at all. तासीर अक्सर खुद को ताकीर का शिकार पाता. वो बाहम वीडियो गेम्स, दोस्तों के साथ गपशप और दिन में ख्वाब देखने यानी ख्याली पुलाव पकाने में घंटों गुजारता था, जबकि उसके स्कूल के काम और काम काज का ढेर लग जाता. अपने अच्छे इरादों के बावजूद उसे हमेशा वक्त ख़त्म होता दिखाई देता, जिसका नतीजा असाइनमेंट्स में जल्दबाजी और नामुकम्मल काम की सूरत में निकलता. उसके असातिज़ा उसके बारे में बहुत फिक्रमंद थे और उसके वालिदैन भी हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन तासीर अपने तौर तरीके बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था. पैराग्राफ नंबर 3. One day his grandfather, who was a wise old man, noticed his struggle. He decided to impart a valuable lesson. He specially invited to his house. Noticed, observed, ध्यान देना. Struggle, fight, जदोजहद, कोशिश. Decide, determined, फैसला करना. Impart, share, बताना. Valuable, precious, कीमती, अहम. One day, एक दिन, his grandfather, उसके दादा जान, who was a wise old man, जो एक अक्लमंद ज़ईफ़ आदमी थे, noticed his struggle, उसकी जदोजहद का. He decided to impart a valuable lesson. उन्होंने एक बहुत अहम सबक देने का फैसला किया. He specially invited तासीर to his house. उन्होंने तासीर को ख़ास तौर पर अपने घर पर मदऊ किया. One day his grandfather, who was a wise old man, noticed his struggle. He decided to impart a valuable lesson. He specially invited तासीर to his house. एक दिन उसके दादा ने, जो कि एक अक्लमंद ज़ईफ़ आदमी थे, उसकी जदोजहद का जायज़ा लिया. उन्होंने एक अहम सबक देने का फ़ैसला किया. उन्होंने तासीर को खुसूसी तौर पर अपने घर बुलाया. पैराग्राफ नंबर 4. तासीर was warmly greeted by his grandfather. He led him to the kitchen table. There was an empty glass jar and a basket filled with big rock, pebbles and sand. तासीर looked intrigued. Warmly, affectionately, पुरतपाक मोहब्बत से, गर्मजोशी से, greeted, welcome, इस्तकबाल किया, pebbles, stones, कंकर, intrigued, fascinated, मुतजस्सिस, नजर आना. तासीर was warmly greeted by his grandfather. उसके दादा जान ने तासीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया. He led him to the kitchen table. वो उसे बावर्ची खाने की मेज़ की तरफ ले गए. There was an empty glass jar and a basket filled with big rocks, pebbles and sands. वहाँ एक शीशे का बर्तन था और एक टोकरी बड़े पत्थरों, कंकरों और रेत से भरी हुई थी. तासीर looked intrigued. तासीर मुतजस्सिस दिखाई दिया. तासीर was warmly greeted by his grandfather. He led him to the kitchen table. There was an empty glass jar and a basket filled with big rocks, pebbles and sand. तासीर looked intrigued. उसके दादा जान ने तासीर का पुरतकबाल इस्तकबाल किया. वो उसे बावर्ची खाने की मेज़ की तरफ ले गए. वहाँ एक खाली शीशे का बर्तन था और एक टोकरी बड़े पत्थरों, कंकर और रेत से भरी हुई थी. तासीर मुतजस्सिस दिखाई दिया. पैराग्राफ नंबर 5. तासीर, I want you to fill this jar with everything in the basket, his grandfather instructed. Taseer eagerly began by pouring the sand into the jar, followed by the pebbles. When he tried to fit the big rocks in, they didn't fit. Taseer frowned and looked at his grandfather. He was puzzled. Instructed, directed, हदायत देना. Eagerly, enthusiastically, बेताबी से, बेचैनी से. Pouring, spilling, ढेलना, डालना. Frowned, scowled, तेवरी चढ़ाना, परेशान दिखाई देना. Puzzled, confused, मुश्किल में पाना. Instructed, directed, हदायत. Taseer, I want you to fill this jar with everything in the basket, his grandfather instructed. उसके दादा जान ने हदायत दी. तासीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बर्तन को टोकरी में मौजूद हर चीज़ से भर दो. तासीर eagerly began by pouring the sand into the jar. तासीर ने बेताबी से उस बर्तन में
रेत भरना शुरू कर दी, फॉलोड बाय द पेबल्स, उसके बाद कंकरियाँ भरी। व्हेन ही ट्राई टू फिट द बिग रॉक्स इन, जब उसने बड़े पत्थरों को इसमें समोने की कोशिश की, दे डिडंट फिट, वो इसमें फिट नहीं हुए, वो इसमें नहीं समाए। तासीर फ्राउंड एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, तासीर ने तेवरी चढ़ाई और अपने दादाजान की तरफ देखा। ही वॉज पजल्ड, वो परेशान था। तासीर, आई वांट यू टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग इन द बास्केट, हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड। तासीर eagerly began by pouring the sand into the jar, followed by the pebbles. When he tried to fit the big rocks in, they didn't fit. Tasir frowned and looked at his grandfather. He was puzzled. तासीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बर्तन को टोकरी में मौजूद हर चीज़ से भर दो, उसके दादा ने हदायत की। तासीर ने बेताबी से बर्तन में रेत डालना शुरू की। इसके बाद कंकर, जब उसने बड़े पत्थरों को फिट करने की कोशिश की तो वो फिट ना हुए। तासीर ने तिवरी चढ़ाकर अपने दादा की तरफ देखा, वो परेशान था। पैराग्राफ नंबर 6, लेट मी शो यू समथिंग, हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड विद अ स्माइल। He emptied the jar and methodically placed the large rocks inside it. Later he added the pebbles which fit in the spaces between the rocks. Finally he poured the sand which filled the gaps left by the pebbles. To Tasir's amazement, everything fitted perfectly. Emptied, vacant, खाली, methodically, systematically, मुनज़्ज़म तौर पर, मुनज़्ज़म तरीके से, gaps, opening, खला. Let me show you something, his grandfather replied with a smile. उसके दादा जान ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। He emptied the jar, उसने बर्तन को खाली किया, and methodically placed the large rocks inside first, और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बड़े पत्थरों को सबसे पहले उसमें रखा। Later he added the pebbles, बाद में उसने कंकरियाँ डाली, which fit the spaces between the rocks, जिन्होंने बड़े पत्थरों के दरमियान रह जाने वाले खला को पुर किया। Finally he poured the sand, आखिर में उसने रेत को डाला, which filled the gaps left by the pebbles, जिन्होंने कंकरियों में रह जाने वाले खला को भर दिया। To Tasir's amazement, everything fitted perfectly. तासीर की हैरानी के लिए हर चीज़ मुकम्मल तौर पर फिट थी। Let me show you something, his grandfather replied with a smile. He emptied the jar and methodically placed the large rocks inside first. Later he added the pebbles which fit in the spaces between the rocks. Finally he poured the sand which filled the gaps left by the pebbles. To Tasir's amazement, everything fitted perfectly. चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, उसके दादा जान ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उन्होंने बर्तन खाली किया और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बड़े पत्थरों को पहले अंदर रखा। बाद में उसने कंकरियाँ डाली जो पत्थरों के दरमियान खाली जगहों पर समा गईं। आखिर में उन्होंने रेत डाली जिसने कंकरों के बच जाने वाले खला को पुर कर दिया। तासीर हैरत ज़दा था कि सब कुछ बिल्कुल फिट था। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट 6 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके वर्ड के सिनोनिम्स और उर्दू मीनिंग भी आपने तैयार कर लिए होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 7 to 13 की, उसकी ट्रांसलेशन और उसके सिनोनिम और उर्दू मीनिंग तैयार करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।